منگوایا اس میں کوئی ایسا پرپس خاتون نے نہیں بتایا کہ وہ کس وجہ سے منگوا رہی ہے. سوری سیکنڈ کوشچن آپ کا کیا تھا؟ ان کا ایشو کیا تھا میاں بیوی؟ دیکھیں وہی میں آپ کو جس طرح میں نے آخر میں بات کی کہ ایز سچ کوئی ہمیں ایسا کوئی ایشو نظر نہیں آیا کہ کوئی تیسرا کردار بیچ میں ہو یا کوئی ایسی بہت پلازیبل ریزن ہو کہ خاتون جو ہے وہ شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی ہوں. ایسی کوئی ریزن ہمارے سامنے نہیں آئی. اپیرنٹلی ان کی جو لائف تھی میرڈ لائف تھی وہ اپیرنٹلی نارمل چل رہی تھی. چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں. البتہ اس طرح کی ایلیگیشن ضرور جو خاتون کی فیملی ہے ان کی طرف سے لگائی گئیں, لیکن ہمارے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس ایسی نہیں آئی جس سے یہ چیز ثابت ہو کہ ان کا کوئی بہت اس طرح کا جھگڑا تھا جس میں کوئی علیحدگی کی بات ہو رہی تھی. کیونکہ یہ اکٹھے پاکستان آئے تھے. جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس سے اگلے دن انہوں نے سیالکوٹ جانا تھا اور پوری فیملی نے جانا تھا. تو ایسی کوئی اور مطلب جو جس طرح کی ہماری تفتیش میں بات سامنے آئی ہے یہ نارملی ہی رہ رہے تھے, تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. پاکستان آنے کی وجہ ناصر ڈوگر نے کیا بتائی؟ امریکہ سے اسپیشل یہاں پر وہ شفٹ ہوئے پھر فورن سے ہوا ہو گیا اور رینٹ کا گھر یہاں پر انہوں نے لیا. جی انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ یہ بقول ناصر ڈوگر کی وہ یہ کہتا تھا کہ جی میرے بچے اب بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان جائیں گے اور ہم پاکستان جا کے رہ کے دیکھیں گے, اگر تو ہم رہ سکے تو ہم یہاں پر رہ جائیں گے, ادروائز ہم واپس چلے جائیں گے. ناصر ڈوگر کیونکہ اس کی چھٹیاں جو ہیں وہ 27 کو ختم ہو رہی تھی تو اس نے اپنی فلائٹ 27 کی کروائی تھی اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کیونکہ بچوں کی جو چھٹیاں تھیں وہ اگست کے تقریباً مڈ میں ختم ہونی تھی, تو اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ اگر تو بچے یہاں پر سیٹل ہو گئے, مینٹلی سیٹل ہو گئے, پھر یہ یہیں پہ رہیں گے, ادروائز یہ بھی واپس آ جائیں گے. سر یہ بتائیے کہ ایف بی آئی کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ تفتیش کر کے رہی ہے, ایف بی آئی کی ٹیم بھی یہاں پہ رہی ہے, ایف بی آئی کی تفتیش اور آپ کی تفتیش ایک جیسی ہے یا ان کی مختلف؟ جی میں تھوڑا سا اس میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. ایف بی آئی کی ٹیم یہ ہمارے ساتھ کسی تفتیش میں شامل نہیں رہی یہاں پر. اس کی تفتیش ٹوٹلی لاہور پولیس نے خود کی ہے. البتہ یہ کیونکہ تمام لوگ اس میں جتنے بھی کردار ہیں تمام یو ایس نیشنل ہیں تو ان کی طرف سے بالکل کنسرنس تھے. ایف بی آئی کی ٹیم جو مقتولہ کی فیملی ہے ان سے بھی ملی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے سے کوئی اگر انفارمیشن ان کو چاہیے وہ تو ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہے. لیکن تفتیش میں ٹوٹلی جو ہے یہ تفتیش لاہور پولیس کی تفتیش ہے اور فردر بھی آگے کوئی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ ان کو اگر پرووائڈ کرنی ہوگی وہ ہم سے مانگیں گے تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. سر انویسٹیگیشن پولیس نے ان کے خاوند کو بھی جو ہے وہ انٹروگیٹ کیا ہے تمام شاہدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن کیا پری پلان خاتون نے اپنے خاوند کو کوئی سوڈا سرف لینے کے لیے بھیجا تھا, پیچھے سے جو زہر دیا گیا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زہر کھانے کے بعد خاتون نے خود ہی بچاؤ کے لیے 1 کی کال دی تھی. کیا اس میں بھی کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں جی جو آپ نے پہلی بات کی نا اس کا تو تھوڑا سا اگر آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھیں تو اس سے یہ چیز تھوڑی سی اس طرف پوائنٹ کرتی ہے, کیونکہ 17 تاریخ کا یہ وقوع ہے. 18 کو بقول اس کے شوہر کے ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے سیالکوٹ جانا ہے اور خاتون اس نے کہا کہ مجھے جب اس نے مجھے گروسری کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے مجھے ان یوزولی لمبی لسٹ دی گروسری کی, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کوشچن کیا کہ یہ اتنی لمبی لسٹ ہم کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ اس میں جی انٹینشن تو نہیں تھی نا دو ملزم آپ اس میں ڈالے ہیں. اب قانونی طور پر آپ کو ان کو کس طرح اس میں پرو رہے ہیں اس ایف آئی آر میں؟ تفتیش تو 302 کی ہے تو ان کی انٹینشن نہیں تھی. کیا آپ ان پر جو ہے ان کو جو چارج ہے 109 کی حد تک کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی ثابت کس طرح کریں گے آپ؟ یہ تھوڑا ہمیں ہماری معلومات کے لیے دیکھیں آپ آن لائن ایک چیز بیچ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیمیکل ہے یہ ایک انتہائی پوٹنٹ پوائزن ہے اور یہ اکثر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کو آپ آن لائن اس طرح بیچ رہے ہیں تو اس میں بالکل انٹینشن آپ کی شامل ہے, اور ہم اس کو پراپرلی ان کی جو ابیٹمنٹ ہے اور ان کا جو رول بنتا ہے اسی حساب سے ان کو چارج کریں گے, مضبوط اس کا چلان بنائیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ ان کو سزا ملے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آسانی اس کو کہہ سکتے ہیں سیکنڈلی آپ نے بتایا کہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں تھی, آیا کہ ڈپریشن تھا, ڈپریشن میں بھی آپ کے کس نے کون سا آپ کے ڈاکٹر میں بھی آپ سے بات کی کون سی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ اس طرح کا بہت بڑا اقدام اٹھایا, وہ ذرا تفصیلی ہمیں ذرا بتا دیں. جی سوری آپ کا پہلا کوشچن کیا تھا؟ کوشچن ہے پوائزن بڑا آسانی سے اس کا طریقہ کار قانون میں کیا ہے, کس طرح مل سکتا ہے, یہ ذرا کلیریفائی کرتے ہیں. سر ڈپریشن کی بھی آگے کافی قسمیں وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں, کیونکہ آپ کے میڈیکل ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی کیونکہ یہ کافی عرصہ سے ظاہر میڈیسن لے رہی تھی تو اب یہ 2-3 مہینے سے اس نے چھوڑ دی ہوئی. تو آیا کہ یہاں پہ آنے کی وجہ ہی یہی بھی پلان
देखिए जी, जो जहाँ तक पॉइज़न की आपने बात की, तो कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनको इस तरह से आप फेसबुक के ऊपर या ऑनलाइन या बगैर किसी लाइसेंस के नहीं बेच सकते। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है, तो ये पहला आपकी जो बात थी वो ये थी। और सेकेंडली ये कि डिप्रेशन इन इटसेल्फ एक बीमारी है जी। डिप्रेशन जो है एक बाकायदा नोन बीमारी है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में भी, हमारी सोसाइटी में जो मेंटल इलनेसेस हैं, इनको बीमारी नहीं समझा जाता। हालांकि हम इनकी बहुत ही भयानक किस्म की मैनिफेस्टेशन देखते हैं, बड़े भयानक तरीके से ये ज़ाहिर होती हैं, जिस तरह आपने इस केस में भी देखा कि अपेरेंटली बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा होता है और लोग कहते हैं कि जी वो लोगों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, खाना नहीं खा रहा, लेकिन एक्चुअली वो डिप्रेशन का मरीज़ होता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये किसी को नहीं पता होता। अब इस केस में भी किसी को ये चीज़ नहीं पता थी, तो ये आई थिंक कि ये डिप्रेसिव इलनेस जो है ये बड़ी सीरियस बीमारी है, और ये इस केस में देखा है कि आपने कितना इसका भयानक नतीजा निकाला है। जी, बड़े देर से ये मामला बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आपने भी बता दिया कि इसमें कुछ लोग हैं, वो भी हम चलान करेंगे आगे। एक मर्डर हुआ है टिकट होल्डर है। अच्छा, ये तासुर बड़ी देर से जा रहा था कि लाहौर में शूटर काम हुआ है, पुलिस की फिर क्राइम नीचे आया। अब ये दोबारा हमने 2-3 वाक़यात में देखा जो टारगेट का बच्चा कत्ल हुआ, ये कहाँ से आए, कोई इनकी लाइफ आ गई। और पहले भी इनके 3 मर्डर हुए थे गांव में, वो सुलह हो चुकी थी गाली में। अच्छा, वो जो फालतू लापा है चेन हमें मिली ऐसी जी, ये बिल्कुल इंसिडेंट जो हुआ है इसके ऊपर हमने तफ्तीश शुरू की है, और इसमें इनिशियली अभी तक ये चीज़ सर्टन नहीं है कि वो शूटर्स ही इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि ये तफ्तीश में ये चीज़ सामने आएगी। अभी तक जो हमें जो FIR के मुताबिक जो चीज़ है वो ये है कि जी 5 नामालूम लोग आए हैं और ये इस तरह हुआ है। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि उनकी एक जगह नहीं 2-3 लोगों से मल्टीपल दुश्मनियाँ पुरानी हैं, तो इसको हम हर पहलू से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ लोग कस्टडी में भी हैं, और हमने वो गाड़ी भी ट्रैक की, जो कि इसमें पुलिस भी और CCD हम मिलके काम कर रहे हैं। गाड़ी भी ट्रैक की, कुछ लोग भी हमारे पास हैं, और फर्दर आगे ये चीज़ अभी क्लियर होनी बाकी है। सर्टेनिटी के साथ ये चीज़ क्लियर होनी बाकी है कि वाकई इसमें शूटर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो जी, थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि शूटर वो होता है जो किसी के लिए काम पैसे पेड, और मारना वो कुछ दुश्मनी ये होती है कि हमारी दुश्मनी और मेरी खानदान में से कोई बंदा किसी को किल करे। जैसे मेरे एक और मर्डर हुआ है, उसके बाप को मारा, ये जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, एक तो लफ्ज़ी हिसाब से तो जो बंदा गोली मारेगा वो शूटर ही है, लेकिन एक्चुअली जिस तरह से हम देखते हैं उसको ये कि जो बंदा इसको एक कमर्शियल बिजनेस के तौर पे चलाता है, कि बाकायदा ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं जो कि ये काम करते हैं, जिनके पास कोई बंदा अगर उसने किसी को मरवाना है वो जा सकता है कि जी इसको मैंने मरवाना है, और वो ऑर्गेनाइज गैंग जो है उसके लोग वो ये काम किसी पैसे के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर करें, तो वो ऑब्वियसली शूटर्स की ज़ुमरे में आ जाते हैं। जी, उसमें हमारी तफ्तीश अभी जारी है, और उसमें अगर मज़ीद हम उसमें कुछ दफ़ात भी ऐड करेंगे, और जो उसकी कानूनी दफ़ात बनती होंगी। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, पुलिस की इसमें गफलत शामिल थी, और जिनकी गफलत शामिल थी उनके खिलाफ FIR भी हुई है, डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया है, और मज़ीद भी इसमें दफ़ात अब हम ऐड करेंगे जो उसके उनसे जो तफ्तीश होगी उसके हिसाब से बनती है। देखिए जी, अभी तक जो इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि उनको इन्फॉर्मेशन ये थी कि यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, और वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली गलत इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उनको ना उन्होंने उसको वेरीफाई किया, ना उसको उनका काम था कि वो उसको वेरीफाई करते, उसको चेक करते, वो चीज़ नहीं की गई, जिसकी वजह से उनको सज़ा दी गई। अगर उन्होंने लेजिटिमेट और सही बोनाफाइडी रेट की होती तो ऑब्वियसली ये चीज़ ना हो रही होती, लेकिन एक जी एक चीज़ क्लियर कर दें, आया कि कोई अगर वो कहीं जो भी वो बता रहे हैं जिस टारगेट को भी वो पकड़ने गए थे वहाँ जाना, कानून में कहीं ऐसी जगह है कि आप किसी को अगर पकड़ने गए तो दीवारें फैलान दें, अंदर चले जाएं, DVR उठा दें, गमले तोड़ दें, देखिए जी जी दीवारें फैलाएंगे, अंदर सरकारी लोग डाले भी खड़े थे, फिर सरकारी नंबर पे ये बात ये
दूसरी बात ये भी बताएं सर कि डीएसपी को तो पता ही नहीं था, सिर्फ एसपी और एसएचओ की कोऑर्डिनेशन थी कि यहाँ पे 3 जगह, उसमें कितनी हिस्सा? देखें जी, ये मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज़ किया कि ये तमाम चीज़ें अभी तफ्तीश तलब हैं। मैंने आपको सबसे पहली बात ये की कि हम इसमें दफ़ात ऐड करेंगे, और उसकी वजह यही है कि ये इसमें एक क्रिमिनल ट्रेसपास भी हुआ है जी, इसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास भी हुआ है, इसमें वहाँ पर चीज़ों को नुकसान भी पहुँचाया गया है, तो इसमें हम दफ़ात ऐड करेंगे। इसमें अभी इनकी इंशाल्लाह बेल कैंसिल करा के इनकी दफ़ात भी ऐड करेंगे, और ये तमाम पहलू जो जिस तरह आप कह रहे हैं, ये तमाम तफ्तीश तलब हैं, और ये तफ्तीश इसकी होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक इंतहाई सीनियर ऑफिसर के घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि जो अच्छा सर, आपसे ये सवाल है कि वलेंशिया के केस के अंदर जो है वो खतून का आपने जिक्र किया है, जब भी अमेरिका से कोई ट्रैवल करता है तो वहाँ पे जो अमला है वो बाकायदा जांच पड़ताल इसकी करता है कि अगर ये डिप्रेशन का शिकार है तो वो ट्रैवल नहीं करने देते, पहली बात। दूसरा ये बताइएगा कि खतून ने, इसका मतलब है कि जब स्टेटमेंट दिया था कि ये मेरे बच्चे खा गया, इसका मतलब उसने डी ट्रैक करने की कोशिश की थी लोगों को भी, और पुलिस को भी जो है वो मिसलीड किया गया वहाँ पे। अब ये बताइएगा कि ये जो जहर बेच रहे हैं, ये केमिकल बेच रहे हैं बगैर लाइसेंस के, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, और क्या जो नासिर डोगर है उसको क्लियर कर दिया गया है, वो वापस जाएगा या इधर ही रहेगा? जी, आपने 2-3 बातें की। पहली बात तो आपने ये की कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो तो उसको ट्रैवल नहीं करने दिया जाता। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई कानून अमेरिका में शायद मौजूद नहीं है जिसमें कोई ट्रैवल करने से पहले किसी के मेडिकल टेस्ट करवाए जाएँ और उस पर असर्टेन किया जाए। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको तमाम डिटेल्स इसकी बता दी हैं कि उसके शौहर को हमने पूरी तफ्तीश की। उसका बल्कि एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं इसमें कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया गया, वो मैं शायद आपको पहले मेंशन नहीं कर सका। पॉलीग्राफ टेस्ट भी उसका क्लियर आया है, वो तमाम चीज़ भी हुई है। और सॉरी, एक आपने और क्वेश्चन जी, उनके खिलाफ कार्रवाई मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वो हम बीच में अपने क्रिमिनल उसमें भी डालेंगे और इनके खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन भी लिया जाएगा। जी सर, वो पीछे वाले जो है ना कुछ लोग हैं। जी आप बताएं, आप क्वेश्चन करें जी। अच्छा काइंडली आप अच्छा एक क्वेश्चन करें। जी आप बताएं। अच्छा आप क्वेश्चन करें जी, आप क्वेश्चन करें। 1 मिनट ज़रा क्वेश्चन ले लें जी, आप बताएं जी, क्वेश्चन करें। नहीं, ऐसी कोई बात जी नहीं थी। किसी फैमिली को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि खातून की फैमिली भी नेचुरली उनकी एक जो बच्ची की डेथ हो गई थी, उनकी बेटी की डेथ हुई थी, उनकी बहन हमें फॉलो करती रही है, बाकी पूरी फैमिली हमारे पास आई है, तो उनके बिल्कुल नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। दूसरी तरफ फैमिली के भी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और ये बिल्कुल दोनों इसके ऊपर ब्लाइंड थे, दोनों इस चीज़ के ऊपर। इसीलिए जब उनकी कन्फ्रंटेशन कराई गई, उनको आमने सामने बैठाया गया और ये तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखे गए, तो वो भी हैरान थे इस चीज़ के ऊपर। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उनके नॉलेज में ये चीज़ थी। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। जी शायद नहीं जी, ऐसी कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा मीडिया से गुफ्तगू उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की जा रही थी, और जबकि ये कहा जा रहा है कि खातून ज़हनी मरीज़ा थी और बच्चों की कातिल माँ ही निकली है। अमेरिका पलट ख़ानदान है ये, और खातून का मुलज़िम से ऑनलाइन रब्ता हुआ। मज़ीद भी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। बच्चों के कत्ल में मुलविस मज़ीद 2 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है।